So, hello everyone, welcome back to All You Board Regulatory Bodies. And today we are continuing our series, that is our topper series of RBI Grade B 2023. So, today we are having a very important session with Prachi ma'am. And this particular session is an roadmap or maybe guide for all the banking aspirants. सच बताऊं तो ऐसी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स की प्रोफाइल मैंने कभी भी मेरे लाइफ में नहीं देखी है. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ रोड मैप और गाइड फॉर एनी बैंकिंग एस्पिरेंट, क्योंकि प्राची मैम ने जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स अभी तक दिए हैं, उन्होंने ना ही बस एक एग्जाम क्लियर किया है, ना दो क्लियर किए, ना तीन क्लियर किए, उन्होंने 5 एग्जाम्स अपने बैंकिंग ओवरऑल जर्नी में क्लियर किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम प्राची मैम on Olive Board, and here we will begin our discussion as she has cleared RBI Grade B 2023 and she is going to be RBI Grade B officer. So, ma'am, I'll begin the discussion with your introduction itself. थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आपका ओवरऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप शेयर करिए. ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, शायद उनके एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं या फिर इवन अगर क्लियर नहीं हो रहे, उनके लिए ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा. सो मैम, प्लीज कंटिन्यू, introduce yourself. Hello everybody. As sir told you guys, my name is Prachi Dhurandhar, and I belong to Raipur, Chhattisgarh. First of all, thank you so much, sir, for your kind words. Also, talking about my brief background, I would like to start by saying that I belong to Raipur, Chhattisgarh, as I told, and I have done my all my studies ranging from school to college to the first job. I was in Chhattisgarh only, so. Schooling I have done from Salim English School, Raipur, and then I have done BTech in Electrical and Electronics Engineering, that from Government Engineering College, Raipur. Graduated in December 2020. Immediately after graduation, the first exam that was there was RBI Grade B. So I appeared for that exam, and for SEBI as well I appeared. Cleared the pre of SEBI, could not clear the mains by a margin. एंड देन फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो आई कुड नॉट क्लियर द प्री, क्योंकि मुझे लगा था कि प्री तो है, क्वांट रीजनिंग ही है, हो जाएगा, 10th का ही होता है, क्या ही बड़ी बात है. पर फिर जब नहीं निकला तो एक रियलिटी चेक मिला कि इट्स नॉट जस्ट लाइक 10th और 12th की जिसमें सिर्फ पास ही होना है. इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. उसमें बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है टू अटेम्प्ट द एग्जाम. सो फिर मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज पे अपना स्टेक इतना नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज आई वांटेड अ जॉब ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम मैं प्रिपरेशन में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ रही थी और घर वाले भी फिर ऐसा हो जाती है फैमिली में भी कि यार व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग. तो एक सोसाइटल प्रेशर भी आ जाता है, एंड आई थिंक आई वाज नॉट रेडी टू हैंडल इट. सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट the cycle of I think 2021, I started giving all the banking exams. So first exam that I gave was SBI PO. Then I gave IBPS PO. I gave IBPS clerk. I think then I gave SIDBI. I gave RBI grade B in that cycle only, and I gave ECGC. So by God's grace, I managed to clear SBI PO, IBPS PO, IBPS clerk. Then I reached till the interview of SIDBI and of RBI grade B of that cycle, and ECGC as well I managed to clear. So after that, I joined. So when the results of SBI PO came, तो उसके जस्ट बाद में आई थिंक आरबीआई ग्रेड बी का जो सेकेंड साइकिल था, लाइक द प्रीवियस साइकिल, उसका प्री था या मेंस था, समथिंग लाइक दैट. सो आई थॉट कि ज्वाइनिंग आ गई है मार्च में, सो मुझे लगा कि प्री तो निकल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने बहुत पढ़ा है, क्वांट वॉन्ट थोड़ा बहुत तो आने लगा है. तो फिर मैंने एक्सटेंशन ले लिया था एसबीआई पीओ से. आई ज्वाइंड लेट, आई ज्वाइंड इन अगस्त, because I was preparing for RBI grade B and I appeared for RBI grade B mains. I managed to clear the RBI grade B mains last year, reached till the interview, but final selection नहीं हुआ. So immediately after that ECGC का result आ गया. So I joined SBI in August, left SBI in March 2023. Then I joined ECGC,
and now we'll leave ECGC and we'll join RBI grade B this year. मैम, इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए, मुझे बस एक चीज याद आ रही है। पहले जब सुपरस्टार बना था फुटबॉलर, तब उस somebody asked him that कि तुम तो बड़े फुटबॉलर बन गए एक रात में, इन वन नाइट यू हैव अचीव्ड द सक्सेस। फिर पेले ने कहा दैट यू डोंट नो हाउ मच लॉन्ग और बिग नाइट दैट वाज। तो सिमिलरली Yeah, मेनी ऑफ द yeah. स्टूडेंट्स, या मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी फीलिंग कि अरे मैम ने तो पांच पांच एग्जाम्स बैंकिंग के निकाले। सो व्हाट इज द हार्डवर्क विच वाज एट द बैक? कितने साल इन्वेस्ट किए आपने, एंड व्हाट वाज द ओवरऑल जर्नी? थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएंगे कि वेर वेर देयर एनी इयर्स जहां पर कुछ एग्जाम नहीं भी निकला या फिर कोई सेटबैक था, एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम इट कि एक ऐसा साल आया जहां पर आपके पांच एग्जाम्स निकल गए? Okay. So, in 2021 जब मेरा दोनों रेगुलेटरी एग्जाम नहीं निकला, तो फिर एक गैप था, जब, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम मोस्टली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं। तो एक गैप था, मुझे लगा कि कुछ ऐसे बिना ही प्रिपेयर किए आप जाके वॉर नहीं लड़ सकते हैं, आप नहीं जीत पाएंगे। उससे सिर्फ एक एक खुद का ही डिमोटिवेशन होगा। तो फिर मैंने आई फिल द फॉर्म ऑफ SBI PO, IBPS PO एंड ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, एंड देन आई जॉइन द लाइब्रेरी where I used to go in the morning at around 9 or 10 and used to come back at around 9 or 10 in the night. So I would say that in those 2 or 3 months, I really put on the hard work. और उसका उसी का फल है कि बैक टू बैक एग्जाम निकल पाए। और एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप कुछ भी कर लें, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं है, आपका कोई फ्री भी नहीं निकलने वाला है। सो आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट। सो नॉट जस्ट माई हार्ड वर्क, obviously I worked hard, now that I can say that, but ऊपर वाले की बहुत कृपा बनी है, उसका ही एक रीजन है ये। Yes, yes, I too believe that, because sometimes many of the students say कि we did a lot of hard work but still maybe luck or maybe God was not with us। तो ये बात भी बहुत important है। Ma'am, the thing which I wanted to ask next is, when you started RBI Grade B preparation, what was your approach for the preparation? क्या approach था? Uh, और जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, तो ओवरऑल आपका स्टडी रूटीन क्या था, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली, कि मतलब जब एक टाइम आपकी लाइफ में आता है कि अब आप सोचते हैं कि यार अब लाइफ लाइटली नहीं ले सकते। लाइक जैसे हम कॉलेज में थे कि जब मैंने जो कर रहे हैं वैसा अब नो मोर वी कैन डू दैट, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज लुकिंग अप टू यू, कि भाई फैमिली पे प्रेशर है, तुम पे प्रेशर है, सोसाइटियल प्रेशर है। तो जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे अब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑलवेज बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, आप पे एक ऐसा रहता है कि यार कि कुछ कुछ बड़ा करे लाइफ यस। में। तो माई ब्रदर इज अ वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट। सो मुझे लगा कि ही इज माई, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाता है। तो ही इज माई इंस्पिरेशन फॉर दैट। तो उन्हीं से मैंने ये सीखा कि इफ माई ओनली जॉब इज टू स्टडी, तो आई मेक श्योर दैट आई एम सिटिंग फॉर 10 आवर्स इन अ डे। क्योंकि आपके पास 24 आवर्स है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। आई वॉज लिविंग एट माई होम, एवरीथिंग वॉज बीइंग डन एंड लुक्ड आफ्टर बाय माई पेरेंट्स। तो एवरीथिंग दे आर डूइंग, एंड ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग मी एनी एक्स्ट्रा प्रेशर की एग्जाम करो या नथिंग लाइक दैट। इट्स ओनली अप टू मी कि आप पढ़ो और कुछ अच्छा करो लाइफ में अपने लिए। तो मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं 10 घंटे की सिटिंग तो लगाऊं ही लगाऊं। और मैं ऑल्सो आई ऑल्सो से कि ऐसा लग रहा होगा कि 10 घंटे एवरी डे फॉर 2-3 मंथ्स इज वे टू मच, पर आई वुड से कि फॉर एग्जाम्स विच हैज QRE, इट्स नॉट रियली दैट हेक्टिक। जब आपको बहुत लर्न करना पड़ता है तो 10 घंटे ऐसा लगता है कि बहुत है, पर अगर आप सिर्फ QRE कर रहे हो, लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स इनिशियली until the notification of RBI came, तो आई वॉज वेरी इजली एबल टू डू दैट। और उस समय लाइक आई टोल्ड कि आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी, तो मैं वहाँ 9 से 10 घंटा यूज टू सिट, जिसमें से प्रोडक्टिव आवर्स मुझे लगता है कि 7.5 और 8 आवर्स होते होंगे। यस। फिर उसमें आई यूज टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 3 मॉक तो लगाऊं इनिशियली। फिर इनिशियली आई वाज लाइक कि पहले एक मॉक लगाया सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर उसमें लगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं, तो फिर एक डायरी मेंटेन किया कि अच्छा इस मॉक में ये गलती होती है। तो फिर उस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाया कि
एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप पेपर कैसे बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ banking examination, you do not have to worry about the hard questions. आपको वो ना ही प्रैक्टिस करनी है, ना ही आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना है। रीजन बीइंग कि अगर वो आपके एग्जाम में आता भी है तब भी आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उसको बनाएं। यस। सो यू शुड प्ले अराउंड, जो कि नो इजी हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कि जो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से यू कैन ग्रैब दैट। तो इसलिए मैंने माई होल फोकस वॉज टू first practice obviously, second to derive a sure shot strategy, a sure shot way जिसमें कि मैं वो एग्जाम अटेम्प्ट करूंगी। तो एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गिव मॉक, लाइक आई यूज्ड टू गिव 3 मॉक्स अ डे। और फिर ऐसा लगता था कि यार इस सेक्शन में ना सही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं सेक्शनल मॉक भी लगा लेती थी उस समय। तो 3 मॉक में कोशिश करती थी कि लगा लूं अलॉन्ग विद द एनालिसिस। और हर मॉक के बाद आई मेंटेन अ डायरी जिसमें मैंने लिखा था कि अच्छा, अभी मैं पहले ब्लड रिलेशंस करती हूँ, उसके बाद अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसा किया कि अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग पहले करना है, ब्लड रिलेशंस बाद में करना है। तो वो मैंने लिख लिया था, लाइक एरो बना लेती थी कि अच्छा पहले सिलॉक्स करने हैं, फिर जितने भी इनइक्वालिटी मतलब जितने भी इजी क्वेश्चन है पहले वो करने हैं, फर्स्ट राउंड में वो सारे करने हैं, फिर सेकंड राउंड में जो मुझे लगता है कि मेरा बेटर है वो करना है, फिर थर्ड राउंड में पजल करना है। फिर उस पजल में भी मैंने बना लिया था कि अच्छा, कि पजल में अगर मेरा अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट्स आएंगे तो मैं बनाऊंगी, सर्कुलर आएंगे तो आई वोंट टच बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट, अनसर्टेन आएंगे तो वो मैं इन मिडिल कर दूंगी। तो माई होल फोकस वॉज दैट ओनली कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊं कि क्या कैसे कब कहाँ करना है। ऑल्सो फॉर सिमिलरली फॉर इंग्लिश एंड पॉन्स ऑल्सो, फिर इंग्लिश के मैंने लास्ट के आई थिंक 10 साल के, 10 से फिर जितने भी अवेलेबल थे, आई थिंक मिनिमम 6-7 साल के तो थे ही। तो उनका सारा मैंने प्रीवियस ईयर निकाला, उसके सारे में प्रीवियस ईयर मुझे जो जो कॉमन लगा वो मैंने उसी डायरी में नोट किया। एंड यू वोंट बिलीव कि लिटरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यस। मतलब जो एक सेट फॉर्मेट है ना, यूपीएस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक सेट फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, पर जो फॉर्मेट है एग्जाम का वो सेम आता है। Not talking about the regulatory exams, obviously, the banking exams I'm talking about. So my whole focus was to make a strategy and to practice कि एटलीस्ट जो मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ कि इस पे मैं खेलूंगी तो वो मेरा गलत ना हो, ना उसमें मैं फिर मार्क ना खाऊं। ऐसा मैंने सो स्ट्रैटेजी बनाई सो थी। इट वाज लाइक आपने आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम्स इनकी सेपरेट सेपरेट स्ट्रेटेजीज की। एंड व्हाट आई कुड सी फ्रॉम योर आंसर्स इज दैट आपने माइक्रो प्लानिंग भी किया और इवन माइक्रो स्ट्रेटेजीज की थी। मतलब ये क्वेश्चन अगर आया इस डिफिकल्टी का तो मैं ये पहले सॉल्व करूंगी, उसके बाद इस टॉपिक पे जाऊंगी। दिस मच लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाज डन एंड आई थिंक दैट इज व्हाई द kudos goes for your success. Ma'am, थैंक यू सो मच। yeah. When we talk about the series of exams as you cleared for RBI per se, when in the uh, like this year when you cleared it, ओवरऑल स्टडी मटेरियल क्या था, बुक्स क्या था, क्या थे रिसोर्सेज क्या थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ईएसआई के लिए क्या फॉलो करे, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए क्या फॉलो करे। सो फॉर देम लाइक व्हाट वर द थिंग्स व्हिच हेल्प प्रिपरेशन? ओके, सो लाइक फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन इसके लिए भी मैंने ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो फॉर फेज 1 तो मेरा वही काम आया जो मैंने एसबीआई पीओ के लिए बनाया था। तो फेज 1 का क्वांट और रीजनिंग में वो काम आया था मेरा। इंग्लिश इज ऑल्सो इन द सिमिलर लाइन, बस उसके यू नो द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस चेंज। तो वो एक चेंज होता है, तो उसके लिए अब पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, ऐसा प्री कंसीव नोशन से हम नहीं जा सकते, जैसे हम बैंकिंग एग्जाम के लिए अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट जा सकते हैं। तो एक वो था। सेकेंड, मैंने रिग्रेसली फोकस किया था जीए पे in my last attempt, and in this attempt because I was sure about my क्यूआरई, सो इस बार मैंने जीए प्रिपेयर किया था। पर अब क्या है ना कि पहले जब एग्जाम्स होते थे तो आप नॉर्मल सोर्सेज से पढ़ के आप जीए निकाल सकते थे वेरी इजिली। अब स्कोरिंग इन जीए इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ भी मेरा यही लॉजिक था कि बहुत अगर कुछ डिफिकल्ट है तो आपको वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मुझे याद नहीं होगा। अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट आ रहा है तो दैट इज एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी फ्रूट्स फ्रॉम देम। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अफेयर्स क्लाउड का वीडियोज आते हैं एवरी, तो मैं उसकी वीकली देखती थी। और मैं सिर्फ वीडियो से ही पढ़ पाती हूँ क्योंकि ऑल्सो बिकॉज बाय दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड वर्किंग। सो इनिशियली आई वाज इन बैंक एंड देन आई एम इन ईसीजीसी राइट नाउ, और ईसीजीसी में भी आई हैड जस्ट
यू नो कम टू जयपुर। और यहाँ भी मेरा कुछ सेटल नहीं था, घर पर सेटल नहीं था। यहाँ आई वाज लिविंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैड नोबडी टू हेल्प मी, लाइक आई वाज डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय माई सेल्फ। तो फिर खाने का भी बहुत दिक्कत होता है व्हेन यू लिव अलोन। सो इवन दैट टाइम आई वाज लिटिल short of time. So, so I started studying from videos, and videos are my only source, I would say. अगर आप मुझसे पूछेंगे constant source आपका क्या है, तो मैं बोलूंगी वीडियो से ही मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ पाते हैं उसको, ना आपके दिमाग में जाता है, फिर आप कहीं देखेंगे तो आप टिक कर पाएंगे। तो फिर मैं वीकली वीडियोस उसके देखती थी, और 2x पे देखती थी। और मैं ऐसा कोशिश करती थी कि मैं जीए अगर पढ़ रही हूँ तो लास्ट के 3 मंथ के जीए मैं बहुत ही अच्छे से करके जाऊँ। हम्म। ऑल्सो फॉर फेज 1 इटसेल्फ, मैंने फेज 2 की जो ईएसआई का जो प्रिपरेशन है, जैसे स्कीम्स हैं या पीआईबी है, वो सभी मैं प्रिपेयर करके गई थी, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। तो ये मैंने फेज 1 के लिए किया था, और उसके लिए भी अलग अलग ही सोर्सेस थे। जैसे कि नॉर्मल अगर जीए है तो उसके लिए मैं पढ़ के जाती थी फेस क्लाउड के वीकली वीडियोस, और वो मैं देख लेती थी कम से कम, मुझे लगता है कि 7-8 बार तो मैं देख ही लेती थी, 4-5 महीने का, 3x पे, सॉरी 2x पे। और कभी कभी ऐसा होता था कि यार इस मंथ के ना, अभी प्रीवियस एग्जाम में ऐसा हुआ कि इस मंथ की जस्ट 1 महीने पहले के बहुत सारे आ रहे हैं, तो फिर मैं वो 1 महीने पहले के 2 दिन बैठ के फिर वो पूरे 1 महीने पहले के डेली वीडियोस भी देखती थी। तो इस तरीके से मैं अफेयर्स क्लाउड से याद करती थी। फिर ईएसआई अगर आप पूछेंगे, क्योंकि मैंने उसका फेज 1 के पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो उसके लिए भी फिर मैं वीडियोस देखती थी। कि पीआईबी के लिए किसी इंस्टीट्यूट के किसी टीचर का वीडियो देखती थी, फाइनेंस के करंट अफेयर्स के लिए किसी किसी इंस्टीट्यूट के दूसरे टीचर का वीडियो देखती थी, क्योंकि बिकॉज आई हैड गिवन द एग्जाम ट्वाइस, आई न्यू कि कहाँ से मेरा मोमेंटम बैठ रहा है, कि अच्छा मैं इनसे बेटर पढ़ पाती हूँ, या उस टीचर से इस सब्जेक्ट में बेटर पढ़ पाती हूँ। तो ये सब मैंने फेज 1 के लिए किया था। एंड गोज विदाउट सेइंग कि मॉक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस। जिसमें भी क्यूआरई आ रहा है उसमें आप मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी जितनी भी क्यूआरई की प्रिपरेशन है, रेंजिंग फ्रॉम एसबीआई पीओ, गिविंग द फर्स्ट एग्जाम दैट वाज एसबीआई पीओ, टू द लास्ट एग्जाम द आरबीआई ग्रेड बी दैट आई गेव रिसेंटली एंड मैनेज टू क्लियर इट बाय गॉड्स ग्रेस। उन सब में मैंने मॉक्स का एक्सटेंसिवली यूज किया है। आई टुक मॉक्स फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूट्स, फर्स्ट वाज ऑलिव बोर्ड एंड सेकंड वाज प्रैक्टिस मॉक। तो उसका मैंने आई मेड श्योर कि सारे सेक्शनल मॉक्स और सारे जितने भी ओवरऑल मॉक्स होते हैं, कंप्लीट मॉक्स होते हैं, वो मैं दूं, बहुत सीरियसली दूं और बहुत अच्छे से एनालाइज करूं। तो ये मैंने मॉक्स बहुत रिग्रेसली फॉलो किया है अपनी स्टडी रूटीन में। सेकेंड, फॉर फेज 2, इफ यू आस्क मी फॉर स्टैटिक पार्ट ऑफ एफएम, आई हैड स्टडीड दैट प्रीवियस ईयर। वो मैं एक इंस्टीट्यूट के स्टैटिक जो फ्री मटेरियल होते थे उससे मैं पढ़ती थी। फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स के मैराथन आते हैं वो मैं देख लेती थी। तो क्योंकि मेरे लिए वो इजी पड़ता था वीडियो देखना, और मुझे ऐसा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपकी एनर्जी चली जाती है। या। ऑल्सो व्हेन यू गेट अ जॉब, तो वो जो एक एक होती है ना कि यार निकालना है, कुछ करना है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यू हैव अदर थिंग्स टू डू। और फिर एक एक सोसाइटी से वैलिडेशन मिल जाता है आपको, खुद को भी लगता है हाँ ठीक जॉब तो है, अच्छी जॉब तो है। तो वो एक जज्बा होता है ना कि यार ये तो तोड़ना है, ऐसा ऐसा नहीं होता है, वो फिर खत्म होने लगता है। तो वो टू कीप दैट अलाइव और टू मेक इट इजी फॉर मी, आई आई वाज स्टडिंग फ्रॉम वीडियोज ओनली। तो फॉर एफएम आई स्टडी लास्ट ईयर, तो उसका इस बार मैं उतना पढ़ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली। डिस्क्रिप्टिव के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैं ऐसा कोशिश करती कि जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, या फिर जैसे पता लग जाता है टेलीग्राम ग्रुप में कि अच्छा दिस टॉपिक, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी लाइक ऑलिव बोर्ड भी एक लिस्ट लेके आता है कि अच्छा या। ये इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं। और ऑल्सो टॉपिक्स। ऑलिव बोर्ड का एक डिस्क्रिप्टिव का एक सीरीज होता था पहले, मुझे याद है मैंने उसके वीडियोस देखे थे। और उस टॉपिक पे मैं सर्च कर लेती थी। फॉर या। एग्जाम्पल अगर कुछ भी टॉपिक है तो उसके आगे मैं यूपीएससी लिखती थी और मैं सर्च कर लेती थी, और वो मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि आई डिड नॉट हैव टाइम टू मेक नोट्स, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु मेक्स नोट। मिस नहीं होती है वैसी चीजें, मेरे को नहीं जमता है वो। तो फिर मैं वो पढ़ लेती थी और वो मैं कहीं सेव कर लेती थी कि जस्ट इन केस फ्यूचर में मैं आके ये रिवाइज करूंगी, विच नेवर हैपेंड। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आप रिवाइज करके जाइएगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे और मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा आपका। So I think most of the strategy book sources you are saying that कि most of the चीजें आपने सेल्फ स्टडी किया था, एंड मेजर सोर्सेस यूट्यूब इंटरनेट पे जो भी फ्री था आपने वो अवेल किया। या यस मैम यस नेक्स्ट एब्सोल्युटली। थिंग एक मैं पूछना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जब आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था आरबीआई ग्रेड बी का, एट दैट टाइम आई थिंक यू वेर फुल्ली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, और जो आपने या और प्लीज। जो आपने क्लियर किया है इस साल कंप्लीटली, एट दैट टाइम यू वेर हाँ हाँ। वर्किंग इन ईसीजीसी। सो या so both the exams, one time you have given it as an full time aspirant.
and second time you have given it as an working aspirant. So were there any Yes. changes in your strategy, and overall what was your experience as a full-time aspirant and as a working aspirant? This definitely I want to ask, because हर कोई वर्किंग एस्पिरेंट ये कहते रहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, और हर कोई फुल टाइम एस्पिरेंट कहता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम के लिए. सो बोथ दीज Yeah, yeah, reasons or excuses we every time face. So I think you would be the right person to address this. या एक्चुअली देखिए, ये जो प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स बोलते हैं वो अप टू एन एक्सटेंट प्रॉब्लम है भी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी कि लाइक जब मेरा एग्जाम सारे एग्जाम्स हो गए, देन आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, एंड आई वाज गिविंग फॉर अबाउट 8 to 9 hours every day in the library to study for RBI grade B phase 2. And even then I could not clear it. Why? Because I did not have the experience कि क्या पूछते हैं, कैसे पढ़ना है. तो जैसा कि आपने पूछा कि लास्ट टाइम when I was not working, so I was not working till phase 2. After phase 2, I had joined SBI as a probationary officer. So while I was not working till phase 2, the same routine, like I used to go to library. I used to sit for about 8 to 9 hours. Like I said, कि पहले जब I was not I did not had any job, so I used to sit for about 9-10 hours. फिर अब जॉब आ गई तो एक वो एक फ्लेम जाने लगता है, तो फिर मेरे वर्किंग स्टडिंग आवर्स कम हो गए, विच इज माई मिस्टेक. तो फिर सेव, तो देयर ऑल्सो आई यूज टू मेक अ स्ट्रैटेजी फर्स्ट कि मतलब अगर आपका फेज 2 है ना, तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है, तो आई यूज टू डिवाइड टाइम विथ मार्क्स एंड अलॉट टाइम टू ईच क्वेश्चन एज पर द मार्क्स. सो आई यूज टू मेक श्योर कि अगर 10 मार्क के क्वेश्चन है तो माई थिंक उसमें मैं 12 से ज्यादा मिनट नहीं लगाऊंगी. अगर वो लग रहा है तो आई इमीडिएटली स्विच टू द अदर क्वेश्चन. Yeah. So then one reason that last year without experience also I was able to clear mains was because कि मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए. मतलब मैंने ऐसा छोड़ा नहीं डिस्क्रिप्टिव पे. तो Yeah. अगर आप क्वेश्चंस छोड़ देते हैं ना, ये मैं पहले से ही सोच के गई थी कि अगर आप क्वेश्चंस छोड़ देते हैं तो अब वैसे ही आपके चांसेस आप समझो कि बहुत कम हो गए, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और Hmm. वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो इसलिए मैंने उसका भी ऐसा स्ट्रैटेजी बना लिया था कि कितने टाइम में क्या करना है. सिमिलरली फॉर इंग्लिश कि कितने टाइम में क्या करना है, अगर उतने टाइम में वो नहीं हो रहा है तो आई यूज टू पैनिक और मैं उसको जल्दी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ जाती थी, ताकि एटलीस्ट मैं पेपर तो कंप्लीट कर पाऊँ. So this is what I used to do, and very same. I used to go library, study, come back, and this was the only routine I was doing. And then I joined SBI. And then when I was working, so here comes the real challenge actually. In this attempt, when I was working whole time, so this time before I joined ECGC, the notification of RBI was already out. So and then I switched to the different state for the first time, and I had to live alone. I was very like "यप, कैसे ही करना है, क्या करना है." I was very anxious, and also because I've never lived without my parents, so that was a different challenge altogether. So when I came to Jaipur, फिर मैंने यहाँ पे घर लिया, फिर मैंने सब सेटल किया, and because the exams were near, and at that time only like I joined here. I worked here for about 1.5 months, and I went to training to Pune. And after training, like 5 or 6 days after training, I had RBI grade B pre. और Yeah. ट्रेनिंग में आप नहीं पढ़ सकते हैं, लाइक एटलीस्ट मैं तो नहीं पढ़ सकती थी. तो आई 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 मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी बिफोर ट्रेनिंग, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ तो भी प्रिपेयर करके जाऊं. तो फिर मैं आई यूज टू गो टू ऑफिस, कम बैक, एंड पूरा घर ऐसे ही बिखरा होता था, क्योंकि सिर्फ संडे एक होता था जिसमें आई यूज टू सेटल एवरीथिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू वर्क, स्टडी, talk to friends and family, and sleep. That's it. That was the only thing I was doing. And then I went to training. Even in training, after the classes, I tried, me along with one of my friends. We used to go to the class back, like Yeah. it's like I was in. It's like you attend class, then you come back to your hostel, and everybody starts playing, having fun, and all. So me and my friend used to go to the class again so that we can study. So in training, for few days we had to manage like this. But फिर at the end we were like कि एक ही बार तो ट्रेनिंग होता है, तो देख लेंगे बाद में. तो फिर हम ट्रेनिंग अटेंड करने लगे. We stopped studying. When I came back after training, so the same routine. I started watching videos. जीए के सारे वीडियोस मैंने देख लिए उस 5-6 दिनों में, and then I gave the exam.
और उसके बाद में द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज द अदर फेजेस फॉर द अदर फेजेस, आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, कम बैक, and then study till 1 or 2, and then sleep, and then again go to office at 10 in the morning. So this is how it used to be. I think for all the working aspirants, the time crunch is there. You will get a very less time. But how Yeah, yeah. judiciously we use it, वो बहुत मैटर करता है. I think with your example also what you are saying, कि इतना rigorous schedule था आपका ट्रेनिंग में, फिर उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन की. ओवरऑल all we could see is that कि आपका पूरा जो टाइम था it was taken up, but still you took out the time. वही कहते हैं ना कि वक्त निकालना पड़ता है. ऐसे नहीं कह सकते कि बस हमारे पास वक्त नहीं है. So I think this is one of the very important takeaways from this answer for all the working aspirants or maybe professionals who are looking at RBI Grade B as their dream job. Ma'am, in this oral preparation of your RBI Grade B, was there any specific area or a topic which was most challenging to you? And if it was really a challenge, how did you overcome it? Okay. So the most challenging part for me was ESI, जैसे कि ऑलमोस्ट सबका ही होता है. तो ESI में आई यूज टू फ्रीक आउट कि इतना कुछ लर्न करना है. तो उसमें स्कीम्स में फिर क्या लर्न करना है, यू हैव टू लर्न द डेटा एज द एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. So, so for that also I, analyze the previous year papers, and then I, made it a point कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. और इन सेम स्ट्रैटेजी आई यूज किया, अगर बहुत हार्ड है तो नहीं करना है, तो वो देख लेंगे फिर एग्जाम में, तुक्का उक्का मार देंगे या कुछ भी. तो जो हार्ड लगता था वो मैं नहीं पढ़ती थी. Hmm. फिर उसके लिए भी आई मेड इट अ पॉइंट कि स्कीम्स अगर पढ़ना है तो जैसे फिर आई यूज अ वीडियोज, लाइक जो स्कीम्स के स्पेसिफिकली वीडियोज आते हैं, लाइक स्कीम्स फॉर for say April month, for the schemes of the scheme that are in use for March month. So Yeah. for that I used to see and I used to watch it, I think 4-5 times till the time I learn it. फिर एक टाइम के बाद वो बहुत जल्दी जल्दी भी होने लगता है कि अगर कोई वीडियो में आपको फर्स्ट टाइम 1 घंटा लगा तो नेक्स्ट टाइम आपको वो कम टाइम लगेगा. सो स्कीम्स मैंने वैसे पढ़े थे. उसके बाद में रिपोर्ट्स भी मैंने ऐसे ही पढ़े थे. एक्चुअली आई वुड से कि ऑल माय प्रिपरेशन वाज बेस्ड ऑन द फ्री मटेरियल दैट वाज गिवन बाय इंस्टीट्यूट कंबाइंड. लाइक Hmm. जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिसका मेरे को जो बेटर लगता था कि अच्छा इससे मेरे को ये बेटर लग रहा है, ये मेरा मोमेंटम जम रहा है इस सर्च के साथ, तो वो मैं आई यूज टू गो अहेड विद दैट एंड यूज टू फुल्ली ट्रस्ट ऑन दैट. Yeah. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उससे ही क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर Yeah. आप रोज रोज का देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप क्या आंसर करेंगे. तो Yes. दिस इज हाउ आई Absolutely. प्रिपेयर्ड फॉर ESI. और फिर मैंने एक पॉइंट ये भी बना लिया था कि नाउ दैट आई नो कि ESI इज नॉट माई फोटे, आई एम नॉट गुड एट इट, कि मैं बहुत सारा कुछ लर्न करके वहां नहीं जा सकती हूँ, और मैं जाती भी हूँ तो वो गलत हो जाता है. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि उसको ज्यादा लोड नहीं लेना है. FM पे थोड़ा लोड डाल लेते हैं, FM पढ़ लेते हैं, इजी इजी भी पड़ता है वो. ESI पे फिर मैंने नो अपना स्टेक अपना डालना बंद कर दिया. तो ये भी मैंने एक उससे. Yeah, ma'am. Ma'am, then the other thing which I want to ask is that कि जैसे आपने रिवीजन की बात की कि रिवीजन ठीक से कर लेना. So, like so much vast syllabus is there for RBI Grade B. What should an ideal candidate do for revision? Okay. So when I told कि I used to watch videos, so for that the revision part also I used to watch that video again. एंड उसके बाद में फिर स्कीम बेस्ड भी कुछ वीडियोस आते हैं, मंथ बेस्ड भी कुछ वीडियोस आते हैं, और फिर एग्जाम के जस्ट पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ ऐसा निकालते हैं. सो इफ यू आर नॉट एबल टू वॉच द वीडियो ना, प्लीज गो थ्रू द PDF. Yeah. तो एटलीस्ट तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उससे कहीं कुछ आ जाएगा. क्योंकि अगर आप खुद से करने लगोगे कि आप खुद से ही PIB के सारे नोट्स बना रहे हो, या खुद से स्कीम्स इन न्यूज आप ढूंढ के खुद ही सारे नोट्स बना रहे हो, तो दैट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड इट्स नॉट एज फ्रूटफुल एज अदर्स. तो अगर आप वही एफर्ट अगर आप फॉर एग्जाम्पल FM में लगा देते हो या डिस्क्रिप्टिव पे लगा देते हो, तो वो ज्यादा बेटर Yes. होगा मेरे हिसाब से. तो इसलिए मैं खुद से नोट्स बनाने की बिल्कुल मेहनत नहीं करती थी. आई एम वेरी लेजी इन दिस. आई नेवर मेड नोट्स. आई ओनली रिलाइड कि जो भी फ्री मटेरियल मिल रहा है, इजिली मिल रहा है, मैं वो पढ़ लेती थी और मैं चले जाती थी. ओके मैम. मैम, ओवरऑल फेज 1 का आपने बता दिया, सोर्सेज, स्ट्रेटेजी. फेज 2 भी बता दिया. लेट्स कम टू फेज 3, दैट इज इंटरव्यू. एंड विथ Yes. यू, ऑफ कोर्स यू हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज. सो आपका कैसा था ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और आपने प्रिपरेशन कैसे किया इंटरव्यूज के लिए? Okay. So
coming to the preparation part first. So preparation में like everybody says कि interview is not a knowledge game, but I would like to disagree a little to it. क्योंकि अगर आपका knowledge नहीं है, if you are not able to give the answers only, so they will not judge your personality as such. Like basic तो सबको ही आता है कि how to enter, how to sit, how to get, everybody knows it. तो उसकी बेसिस में आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते. So I focused on knowledge part a lot. Also because I had not worked anywhere last year, and I don't read newspapers. I find it very boring and very time taking. So I studied for that. I studied that working and functions of RBI. I studied that I think 5 or 6 times at least. I have studied that. And then I studied the annual report of SBI, because by then, when they gave the interview of RBI, the second attempt only, I was working in SBI. So I studied the annual report of that very thoroughly. And then again, the current affairs from the PDF that are provided by the coaching institutes, I studied that. And then I gave mock interviews, few mock interviews I gave, and then I made, the biodata when they gave ना, so उसके एक point पे मैंने बहुत सारे questions बनाए थे, और उससे मैंने बहुत एनालाइज किया कि कब मैं यहाँ क्या बोलूंगी. So this is how I prepared for it. And this time along with the SBI, I also had to study everything about ECGC. So annual report of ECGC, the website of ECGC, everything along with all the details of RBI website, RBI annual report, RBI working and function, SBI annual report, SBI website, ECGC annual report, ECGC website. So all these I had to study this time because I had worked in 2 institutes. मैम इतने सारे एग्जाम्स आपने दिए, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, wasn't it hectic for you? How to balance between multiple exams, one after one you are giving, and even clearing those exams? So I'll tell you one thing. I believe कि एग्जाम्स का जो गेम है ना, फर्स्टली आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यू गेट बहुत वो. ऑल्सो आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन दिस फील्ड, लाइक दे वर ऑल्सो गिविंग एग्जाम्स. So we used to talk a lot about this. So एक मोमेंटम होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं. अब देखिएगा कि बहुत लोगों का प्री निकलता ही नहीं है बहुत सालों से, फिर एक साथ में सब निकल जाता है. सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, सब एग्जाम्स निकल जाएगा. वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम देने का मोमेंटम होता है. तो दैट मोमेंटम आई मेंटेन्ड, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द peers that I had. My closest friends and everybody around me were very motivating or asking about exams. So this is how it used to be, and very honestly speaking, once you start clearing it, you enjoy the process. Like when I gave the interview of RBI the last year, when I came out of that, I was extremely grateful to Almighty that I got a chance. I at least got a chance to appear in front of those. They are very knowledgeable and, I think the best in the field. And I got a chance to interact with them. So the whole game of this exams is very interesting. It gets interesting once you are prepared up to a certain extent, and you have cleared some of the exams. So एक confidence भी आता है कि ठीक है, पहले किया था अभी भी कर लेंगे, ऐसा एक confidence भी आता है उसके साथ. Ma'am, in interview only, was there any specific question which was asked, and would you like to highlight that particular question? And if it was really out of blue, then how did you handle that? Okay. So actually, when I just entered the hall, the interview hall, so the chairman sir, I entered. मैं बैठी भी नहीं थी उस समय, and he said कि 6 months in SBI, 6 months in ECGC, you're doing injustice to the organizations. And that was a very serious talk. It was a very serious talk in the room. Everybody was looking at me, and I was like, yes, sir, I found better career opportunities, so I switched. So then Singhal sir tried to make it even more intense, and he said that how can ECGC be a good career opportunity? Like better career choice in SBI, because promotions in SBI is unmatchable. He even said that SBI is better in promotions even than the RBI. So so my interview started in this tone only. No. They were like कि stress test लेना है इसका. It's very And then interesting. after, It's very interesting. yeah. So they Continue, were ma'am. the Continue. like, so they were the like, why did you switch? The main question of the whole, my whole interview was, why did you switch? Why would somebody go to ECGC from SBI and change the whole state, everything? And then so I told them
that my main motive has always been to get into RBI. I have been giving exams ever since I have been eligible for it. So after that, we had some conversations about it, and then they asked that, do you remember the faces? Like last year also, you came to the interview. Do you remember the faces? So I said, sir, I remember some of the faces. To which sir said, it's good that you don't remember any faces. Nice. So it went like that. So then it was all knowledge based, like I told. Then they started asking something about ECGC, and then something about SBI, banking, current affairs also they asked. So it was all good actually. Okay, ma'am. I think that much discussion for phase one, phase two, and strategy related. I think we have done enough discussion. Now, ma'am, I will ask you a little bit question from my side. How did Olive Board help you during your preparation journey for RBI Grade B? Was there any particular things in which, like overall, you used Olive Board platform, and what were those? Okay. So like I mentioned, how important mocks are. And I would say for banking exams, if you're not investing in anything, I would suggest you to not invest your money in anything for banking exams except for the mocks. So so I bought the, that comprehensive mock from Olive Board, and ever since I have been preparing, like starting from the SBI times. Even from since then till the last exam that I gave right now, RBI, I have been, using Olive Board mocks extensively for all the QRE part. So every day I used to give three mocks, and I used to analyze it. And Olive Board, like my brother suggested me, my brother introduced me to the Olive Board, and me along with all my friends who are working in SBI or who are working in ECGC, everybody used the mock of two institutes. One was Olive Board, other was the practice mock. And मैंने भी यही किया था कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली मॉक्स यूज किए हैं ऑलिव बोर्ड के. एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैंने सिर्फ मॉक्स ही यूज किए हैं. मैं सिर्फ मॉक्स ही लेती थी. एंड आई हैव मेड इट a routine. Like it was a routine to me. Like I'll go to library, I'll practice some multiplication and division because I used to make a lot of mistakes in that. I used to do it ताकि अगर मैं सुबह एग्जाम में जाऊँ ना, तो मेरे पास ऐसा ना हो कि यार अचानक से ही आ गया. तो आई यूज टू गेट फेमिलियर विद द नंबर्स फर्स्ट. सो आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी, आई यूज टू गेट फेमिलियर विद द नंबर्स, कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ डिवाइड कर लिया, कुछ टेबल्स देख लिए. Then the next thing that I used to do was mock. Then analyze, then again do mock, and then analyze, and then again do mock, then again analyze. और लास्ट एग्जाम में भी फिर मैंने यही किया कि जो भी मैंने नोट्स बनाए कि मैं क्वांट में ऐसे 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 तैयारी, ऐसे ऐसे एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करूंगी, रीजनिंग में ऐसे करूंगी, इंग्लिश में ऐसे करूंगी. दैट इज व्हाट आई डिड फॉर ऑल द एग्जाम्स. Okay, very well said. Ma'am, like many of the aspirants as well as students feel कि overall exam preparation थोड़ा सा challenging होता है. तो throughout your journey, how to keep oneself motivated and mental strength भी बहुत important है exams के लिए. तो ये सारी चीजें, what would be your thoughts in the same? आई वुड से टू हैव गुड रिलेशंस एंड पॉजिटिव रिलेशंस around yourself, be it in family, like now I'm working so in office. So I'm very very grateful to everybody, who are associated to me during this phase. It was only my family, when I was not working, that they were only motivating me कि यार तू तो कर ही सकती है, इसमें क्या है ऐसा. तो मतलब I used to study, I used to come back and forget about studies. I used to talk to my mother, chill with my brother, talk to my father. This is all I did. And even now when I was working, so so even now I am very grateful to people of my organization. They मतलब उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं कि अच्छा ये एग्जाम दे रही है तो they were very relaxed with me कि अगर बाकी लोग वीकेंड्स में जा रहे हैं काम करने, तो I was given a holiday कि अच्छा you are studying. So to have very good relations with the people around you, and also friends are very very important. They make you, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो they will scold you, they will make sure कि you study. So to have good friends, to have genuine friends is very very important, and I'm extremely extremely grateful to everybody, जो मुझसे associated थे इस phase में. So मतलब I think success is never for a single person, it's a combined effort. Yeah, So truly with said. me also, it played a very great role. This is Uh, what I would say. yeah, ma'am, very very aptly said. Ma'am, any advice to upcoming aspirants who are preparing for RBI Grade B 2024? इस बार Okay. सपोज कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा है, या फिर इवन इफ देर इज एनी वेटरन कैंडिडेट,
anybody who is giving RBI Grade B 2024, what would be your guiding tips? Okay. So first of all, for any exam, not just RBI Grade B, I would say phase 1 ज्यादा डिफिकल्ट होता है, so don't take it lightly. तो आप फेज 1 पे बहुत फोकस कीजिए, फर्स्टली. एंड सेकंड, आई वुड से बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. लाइक यू नो व्हेन यू आर स्टडीइंग, आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो. डोंट जस्ट यू नो स्टडी जस्ट टू मेक योर फैमिली फील दैट यू आर स्टडी. तो जेन्युइनली बहुत अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहना है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. लाइक जैसे कि आई सेड कि मैं बैंकिंग एग्जाम में मैंने स्विच ही इसलिए किया था क्योंकि आई न्यू आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. Yeah. तो मैंने स्विच ही इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत मेहनत की जरूरत है अभी. दिस वाज सेकंड. एंड थर्ड, आई वुड से कि अगर आप सिर्फ एट मैक्स 6 महीने भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. जेन्युइनली आई एम सेइंग कि आप बस 6 महीने की ही मेहनत है. क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट, और मे बी इट वाज ओनली मी, जो कि कॉलेज तक तो हमने पढ़ाई नहीं है. तो कॉलेज के बाद ही अगर आप 6 महीने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो आपकी बहुत पूरी लाइफ चेंज कर देगी. आपकी पूरी फैमिली वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड you will change the life of your family as well, and you own it to your family. I would say you own a very very good life to your family. Do it for themselves, do it for them. So don't play with time. क्योंकि अगर आप जैसे आपकी एज होगी, आपका पढ़ने का वो जील चला जाएगा, आपको बहुत बोझ लगेगा पढ़ना. तो जितनी जल्दी हो सके इस प्रिपरेशन फेज से आप बाहर आ जाइए, और बाहर Yes. आ जाइए, सक्सेसफुली बाहर आ जाइए. जितना टाइम आप लगाएंगे उतना आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जाम्स निकालने में. दिस इज माय लास्ट एडवाइस. I think these were the most wise words any aspirant should listen. Because because when even as I told initially जब हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया, मैंने सबको यही कहा था कि दिस इज द कंपेंडियम फॉर एनी सक्सेसफुल बैंकिंग एस्पिरेंट. मैंने वो क्यों कहा था? क्योंकि इफ यू सी प्राची मैम, उन्होंने एग्जाम्स जितने भी क्लियर किए, दे हैव मैम हैज क्लियर्ड इट विद इन हर 24-25 एज. उन्होंने उससे पहले ही सारे एग्जाम्स क्लियर किए. तो she's saying whatever she had said, those are really wise words. So I think everybody should stick to whatever ma'am had said right now. मैम एक बात कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा आपसे. जैसे रिजल्ट बाहर आया, आपका नंबर, आपका नाम आपने देखा रिजल्ट में कि ओके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए. सो नाउ व्हाट इज योर अप्रोच, और मे बी व्हाट इज योर प्लान टू अप्रोच योर करियर फर्दर इन आरबीआई? कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एरियाज जहां पर आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, कोई कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? Very honestly speaking, now that my study cycle is over, I'm only relaxing. I'm roaming around. I'm exploring places around me. I'm talking to people I've not talked to. I've recently, joined Insta. I was not a part of it earlier. So I'm only relaxing. I'm only chilling. Once I'll get the appointment later and I'll get to talk to different people, maybe then I'll start thinking about it. Right now, though, it's only a chill pill time for me. I'm not thinking about career further right now. I'm only enjoying my work, people around me, एंड द लाइफ इन सच. क्योंकि बहुत टाइम बाद ये फेस आता है ना, कि आप अब ऐसा लगता है कि आप तो नहीं पढ़ना है. एंड क्योंकि एवर सिंस आई ग्रेजुएटेड, आई वाज स्टडीइंग फॉर वन और द अदर एग्जाम्स, एंड इट इज हेक्टिक. ऑल्दो आई सेड कि मतलब इट्स इंटरेस्टिंग, यस इट इज इंटरेस्टिंग, बट इट इज हेक्टिक बिकॉज यू डोंट गेट टाइम टू डू एनीथिंग apart from studies. You work, you study, you sleep. This is all you do. So अभी ऐसा टाइम है कि मैं टाइम वेस्ट कर सकती हूँ without any guilt. So I'm doing it, spending time with my family, really enjoying the phase. एंड यू डिजर्व इट मैम, ऑफ कोर्स आप डिजर्व Yeah, करते हो. yeah. फाइनली, एनी क्लोजिंग थॉट्स और वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर watching right now? I would say have faith in yourself. Have little faith in yourself. Hmm. Last year when I cleared mains, I was like ये कैसे हो गया? मतलब मैं मतलब मेरे से कैसे आरबीआई ग्रेड बी का मेंस क्लियर हो गया? Nobody around me cleared. Nobody in my training, like SBI PO, people are very smart. मतलब Yeah. I think hardly anybody cleared. Only me and I think one more guy cleared. So I was like ये मतलब ईश्वर इतना मेहरबान कैसे हो गया कि मेरा क्लियर हो गया. So आई थिंक उतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ किया है मेहनत, यार हुआ है इसलिए. तो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड. लाइक आई वुड से इट अगेन एंड अगेन कि आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन फेज से बाहर आ जाएं, आप आ जाइए. क्योंकि जैसे जैसे टाइम होगा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Yes. एंड ऑल्सो लास्ट थिंग आई वुड से कि टेक एग्जाम्स लाइक एग्जाम्स ओनली. ऐसा Uh, पूरी
ना लाइफ नहीं बना लेनी चाहिए उसको। आप पढ़ाई करो उसके बारे में, यू वर्क हार्ड एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट, लाइक आई यूज्ड टू गिव एग्जाम्स एंड देन आई फॉरगेट अबाउट इट। मतलब मुझे किसी भी एग्जाम से मार्क्स भी याद नहीं रहते, अभी भी नहीं है मुझे कि मेरे फेज में कितने मार्क्स आएंगे, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब मैं सोचती हूँ कि अब हो गया, अब जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो टेक एग्जाम्स लाइक एग्जाम्स एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। Well said, ma'am. I think this was one of the most impressive interviews we had from a banking ओके। aspirants, of course. And I think I'm really amazed, as well as I'm very, very, very fortunate that we had you today for this particular session. Why? There are प्लेजर various इज ऑल reasons. माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। Yeah, and there are various reasons also, ma'am. Why? I'll tell you. Because many of the banking aspirants, many of the full-time aspirants also, they are looking RBI Grade B exam as their dream, and there are so much of things they are always fetching for. Sources के अलावा, books के अलावा, वो हर हमेशा strategy, चाहे फिर overall उनके problems, and at the same time वो attitude को भी ढूंढ रहे हैं. And all these things, I think today we saw in your profile as well as in your personality. At last, we like it is very sad that we come to the end of this particular session. Uh, दैट्स वेरी uh, काइंड ऑफ यू एक्चुअली। yeah, thank you very much, ma'am, for being part of this particular topper series of from Board regulatory bodies. And we end this session here. Uh, and thank you very much. Actually, thank you guys for giving me this opportunity, to be able to interact with people. I have been at the other side of the table earlier when I was preparing. So, thank you so much for giving me this opportunity. Yes, so everyone, we will come with more such topper series and more such interviews. So till then, keep subscribing and comment whatever you feel like as you are watching this particular interview. Thank you very much and see you next time.